On today is a very hot webinar, that is the critical issues in section 143BH of Income Tax Act. On this subject, our very respected and experienced CA Manoj Lambaji is with us. I welcome you, sir. And for the recording purpose, I am introducing you because otherwise everybody knows you, sir, very well. CA Manoj Lambaji is a seasoned chartered accountant renowned for his extensive expertise in auditing, income tax, and company law. Accumulated over a prolific career spanning 25 years, his dedication to nurturing startups and MSME business is evident through his multifaceted roles as a co-founder of BizGyan Private Limited, a distinguished startup recognized by the Government of India, and a registered mentor on the Startup India government portal. Manoj ji actively engage in guiding startups throughout their growth trajectory from inception to securing funding. Leveraging his profound knowledge within the startup ecosystem, he plays a pivotal role in training and mentoring startups and MSME, assisting them in comprehending MSME schemes and optimizing the benefit offered by the government. Beyond his professional pursuits, Manoj ji passionately imparts tax awareness through his widely followed YouTube channel, Tax Ki Pathsala, aimed at enlightening his peers and the broader society. Broader society. Manoj ji impactful mentorship spans over 10,000 students and fellow professionals through 500 plus seminar and webinar conducted across India. Now this figure has increased, sir. Furthermore, his contribution to life literature includes the authorship of a three enlightening books, a simplified guide to GST for BCom university student, Kurchet KUK, an ebook focused on Vivad se Viswas, an author ebook delving into the rectification of mistakes under Income Tax Act 1961. Manoj ji has also appeared on various financial and money TV channels like Aaj Tak, Money 9, where he regularly contributes to tax-related discussion. He has delivered his insights on shows like Tax Ki Baat, Aapke Saath, and Kar Varta. Hindi tax show aimed at dismantling tax-related knowledge to the masses. Additionally, he has contributed articles to various tax awareness platforms and newspapers such as Tax Information, Tax Guru, CA Sansar, and CA Club India. His latest contribution, Revenue Rebound, a guide for MSME payment recovery, serves as a comprehensive handbook for MSE navigating the complexity of payment recovery. This is the brief profile of today's our very learned brother, CA Manoj Lambaji. I once again welcome you. I also welcome Sunil Dhamijaji and Rajiv Kohli as a panelist and all the attendee. I would request if anybody wants to join as a panelist, kindly raise your hand. I will take him as a panelist. And once again, thank you and over to you, Lamba sir. Thank you so much, Rajesh ji, for kind words. I also thanks Advocate CA Rajiv Kohli ji, Sunil Dhamija ji, our convener Agarwal Saab, and Radhe to all of you. Sir, 43BH पर अपनी डेलिब्रेशन शुरू करें हम, इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं. ये 43BH का टॉपिक सर एक ऐसा टॉपिक हो गया जहां इनकम टैक्स अधिनियम में एक लाइन जोड़ी गई और एक लाइन इतिहास, इनकम टैक्स के इतिहास की एक ऐसी लाइन है सर ये जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया. और फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ये कह भी गई कई प्लेटफॉर्म पर आके हमारे इंस्टीट्यूट के कि शायद इस पे हम कुछ बदलाव कर दें या इसको डेफर्ड कर दें या कुछ रिलैक्सेशन दे दें, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. इसके लिए सर हमें समझना पड़ेगा पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी, ये सेक्शन आया क्यों, सरकार की मंशा क्या थी, और ये जो हमारा MSMED एक्ट 2006 सर ये है क्या. मैं आपको बड़े सरल शब्दों में बताऊंगा सर कि हिंदुस्तान में इससे पहले एक कानून हुआ करता था सर जिसे कहते थे हम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकिंग एक्ट.
उसको रिप्लेस करके सरकार 2006 में एक कानून लेके आई जिसका नाम रखा गया, नामकरण किया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। सर प्लीज नोट डाउन द वर्ड डेवलपमेंट of micro, small, and medium. And the preamble of the act, if we have to understand the act, we have to read the preamble of the act. And the preamble of this act, the Mijaji very clearly states that this act is formulated by the central government only for the promotion, protection, and growth of MSME. There are three basic pillars of this act. और हिंदुस्तान का सर एकमात्र ऐसा कानून राजेश जी जिसमें पेनल्टी का कोई प्रावधान ही नहीं है। सारी की सारी बातें जो हो रही हैं वो बातें किस लिए हो रही हैं? इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए। अब इसी संदर्भ में एमएसएमई की प्रॉब्लम थी, वो लेके फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा गए कि सर या मैडम हमारी पेमेंट्स नहीं आती। हमारी बेसिकली क्या था राजेश जी, कुछ बड़ी कंपनियां, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बड़ी कंपनियां, कुछ भी ले सकते हैं आप उसमें, जो छोटे लोगों का पैसा नहीं देती। छोटे लोग तो आपस में व्यापार पहले भी कर रहे थे, लेकिन हम बिग नेम्स आर नॉट पेइंग टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस ड्यू टू विच देयर बिजनेस स्ट्रक। मैं एक आर्टिफिशियल एग्जांपल में मारुति का नाम लेता हूं, आर्टिफिशियल एग्जांपल। अब मारुति एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसे पूरे हिंदुस्तान से सर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से छोटे छोटे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट खरीदने हैं। वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट तो खरीदते हैं, किसी से 2 लाख के, किसी से 4 लाख के, किसी से 10 लाख के, लेकिन उनकी पेमेंट टाइम से नहीं है। मारुति के लिए 10 लाख रुपए का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए गए थे वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास कि हमारा कुछ दया दृष्टि डाली। उन्होंने दया दृष्टि डाली, लेकिन वो दया दृष्टि उनके लिए ही अभिशाप बन गई सर। ऐसी दया दृष्टि जो उनके लिए अभिशाप बन गई। अब उस दया दृष्टि में उन्होंने किया क्या सर? एनी सम पेबल, जो 1/4/23 से क्लोज आई, पहले इसे पढ़ लें सर। पहले तो हम सेक्शन 43B पे जाएं दोबारा सर। सेक्शन 43B क्या कहता है? सर्टन डिडक्शंस टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। This is the tagline of section 43B, sir. I am reading once again. Certain deductions to be only on actual payment. हर कुल मिला के 4 और 2 6 वर्ड है इसकी टैगलाइन। ये कह रहे हैं कि कुछ डिडक्शन, सर्टन डिडक्शन, नॉट एवरी डिडक्शन सर। जो डिडक्शन हम इस सेक्शन की माला में जोड़ते जाएंगे, वो डिडक्शन ऐसी हो जाएंगी जो तब मिलेंगी जब एसएससी एक्चुअल में इसकी पेमेंट करते। अब मैं अपने पैनलिस्ट को एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, और सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। ये है, एक दूसरे प्रीव्यू में समझते हैं। एक व्यापारी, आपको हिंदुस्तान में पता है कि कितना बड़ा बिलिंग का धंधा है, बोगस धंधा है, और कितना ज्यादा बिलिंग का काम होता है। एक व्यापारी जिसने 5 करोड़ रुपए की परचेज किताबों में बुक कर ली और उधर किसी क्रेडिटर का नाम खड़ा कर लिया, वो क्या कहता था सर कि 5 करोड़ की मेरे को डिडक्शन दे दो, मेरे को 5 करोड़ की डिडक्शन दे दो, जिसकी पेमेंट मैंने कभी देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी है? मैंने पहले बता दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ एंट्री है। दिस अमाउंट इज नेवर टू बी पेड। गवर्नमेंट को यह बात समझ आ गई सर। वो कह रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस आल्सो। दैट्स व्हाई दे इंसर्टेड दिस क्लॉज इन सच ए वे that if any sum is payable by any sum payable by an assessee to micro or small enterprises beyond the time limit specified under section 15 of micro, small and medium enterprises development act 2006,
अब ये सेक्शन 15 क्या है सर? ये सेक्शन 15 अगर हम अच्छे से समझ लें तो आज इस बात का यकीन दिलाता हूं सर, 1 घंटे बाद आप कहेंगे कि 43BH का सोल्यूशन लांबा जी ने हमें दे दिया। सेक्शन 15 हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए। हमें समझना पड़ेगा सर दो चीजों को, एक तो सेक्शन 15 को, और दूसरा चीज हमें समझना पड़ेगा सर इंटरप्राइज को। क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ट्रेडर होना चाहिए। इंटरप्राइज को समझना है सर। और दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये सेक्शन 15 कहता क्या है। 1 मिनट में आपकी स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। माई स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल सर? Yes, boss. Yes, boss. ओके। हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट का चैप्टर 5 सर, जिसमें हर सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 24 है। जो लोग ये सेक्शन 9 सेक्शन समझ गए उन्हें ये सारा विज्ञान समझ आ जाएगा कि ये सरकार चाहती क्या थी और क्यों लेके आई। फर्स्ट थिंग, चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डिलेड पेमेंट धमीजा जी? डिलेड पेमेंट। अब वेरी pertinent question here is which payment is said to be delayed and when it is said to be delayed। दो चीजें कह रहा हूं सर, कौन सी पेमेंट है जो डिलेड होगी और कब वो डिलेड होगी। टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, यानी इस ये यही सेक्शन मीडियम पे क्यों नहीं लगा सर? ये सेक्शन मीडियम पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि चैप्टर 5 भी मीडियम पे नहीं लगता। गेटिंग माई पॉइंट? एमएसएमईडी एक्ट का चैप्टर 5 भी मीडियम इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए ये बेनिफिट भी उसको नहीं दिया गया। चलिए सर, अब सेक्शन पढ़ते हैं सर एक बार, क्योंकि सेक्शन 15 का जिक्र आया। सेक्शन 15 कहता है लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। Liability of buyer to make payment. First, we have to understand the meaning of word liability. Liability means where you are legally bound to pay something. Where any supplier, राजेश जी वर्ड यहां पर सप्लायर है, सेलर नहीं है। सप्लायर वर्ड यूज किया है सर। Where any supplier supplies, अगेन सेल वर्ड नहीं है। सप्लायर और सप्लाइज है सर। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विस टू एनी बायर, द बायर shall make payment thereof on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing। Where there is no agreement in this behalf before the appointed day। सर इस अपॉइंटेड डे को नोट कर लो अपनी डायरी में। अपॉइंटेड डे के वर्ड को नोट कर दो, यहीं से सारी कहानी चलनी है मेरे लेक्चर। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन सप्लायर एंड बायर इन राइटिंग shall exceed 45 days। कहां से सर? फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस धमीजा जी। डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब ये एक्सेप्टेंस का है और ये डीम्ड एक्सेप्टेंस कौन सी होती है सर? मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुई लेकिन हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई है,
इसको भी समझेंगे। तीन चीजों पर हमें तवज्जो देनी है सर। नंबर वन अपॉइंटेड डे, नंबर टू acceptance, number three deemed as. Before I jump to discuss on these three words, I want to tell you that this law says the date agreed upon between him and the supplier in writing. अग्रवाल जी, राइटिंग का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कोई कल्चर नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट का कोई कल्चर नहीं है। यहां माल कैसे आता है? एक लाला जी दूसरे लाला जी को फोन करते हैं कि इतना सामान भेज दो और सामान घर आ जाता है। लेकिन अगर ये ऑर्डर हमने फोन पे ना देके अग्रवाल साहब एसएमएस पे दिया था, या व्हाट्सएप पे दिया था, या टेलीग्राम पे दिया था, या ईमेल पे दिया था, तो क्या ये एग्रीमेंट इन राइटिंग है सर? एग्रीमेंट इन राइटिंग है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है सर आज के टाइम में, क्योंकि हिंदुस्तान की 98% ऑर्डर ऑन फोन है सर। 2% बिग इंटरप्राइज में तो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन 98% इंडस्ट्री फोन पे चल रही है। अगर हम इस साल तो हम अब क्या करेंगे, लेकिन उनको अगर पुराने वालों को यह समझा दें कि भैया फोन की बजाय ना एक व्हाट्सएप भेजा करो, तो क्या वो व्हाट्सएप पे एग्रीमेंट को एग्रीमेंट मान लिया जाएगा राजेश जी? The answer is yes. There is Yes. there is a act in India, that is इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जब से ये आईटी डेवलप हुई है, ये नई नई चीजें आई हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन का एक सेक्शन है सर, जो ये बड़ा क्लियरली कहता है, इफ समथिंग इज फाउंड ऑन, इफ समथिंग इज एज एविडेंस इन इलेक्ट्रॉनिक मोड like email, SMS, WhatsApp, Telegram, or anything else in any other means, should it be treated as in writing written evidence? Yes, sir. It is evidence. It is admitted by any court of law. अभी आपने कोविड के दौरान देखा भी राजेश जी कि लोग कह रहे थे मैसेज भी 2 टिक हो गए व्हाट्सएप पे, तो नोटिस भी वैलिड सर्विस माना जाएगा। तो जब ये रेटिंग में माना जा सकता है, तो पहले तो अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस दीजिए कि भैया ये काम तो कर ले। तो अब दूसरी चीज आती है, देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डे से पहले पेमेंट होनी है सर। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग को हमेशा यहां स्टक करता है धमीजा जी, कहीं ये मना किया गया है कि आज की डेट में ये एग्रीमेंट हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? वेदर ए बैक डेटेड एग्रीमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड? यस जी, बैक डेटेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता? देयर इज नो बार एनीवेयर इन एनी अदर लॉ। और वैसे भी एक चीज बता दूं सर, सेक्शन 15 से सेक्शन 24, सेक्शन 24 इन्होंने स्पेसिफिकली डाला है जो ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है। और ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या बताता है सर? कि ये जो कानून है एमएसएमई कानून, ये दुनिया का ऐसा कानून है जो दुनिया के सारे कानूनों को ओवरराइड करेगा। क्या लिखते हैं सर? यहाँ पे ये नहीं लिखते हर इनकम टैक्स की तरह कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू 43 सी। ये लिखते हैं क्या है सर? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट? ये कह रहे दुनिया के हिंदुस्तान का कोई भी कानून ऑफ में कुछ भी लिखा हुआ है, हम सर्वोपरि हैं, हम ही गीता है सर, हमारे को ही सुनना, बाकी सबको भूल जाना। अब इसकी जो हम बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट था तो नहीं, क्या मैं आज की डेट में बैक डेटेड एग्रीमेंट कर सकता हूं? तो आंसर इज यस सर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। यू कैन एंटर विद द बैक डेटेड एग्रीमेंट। बैक डेटेड कर लीजिए, जब 15 दिन हो रहा है खोलो। अब राजेश जी यहां पर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आता है इमीडिएटली कि
सपोज कीजिए 15 दिन और 45 दिन जो खत्म हो रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं पब्लिक हॉलीडे को। समझिए इस तरह से 1 अगस्त को कोई सामान खरीदा था, ड्यू डेट 15 अगस्त है, हर 15 दिन एग्रीमेंट था नहीं, और 15 अगस्त क्या है, पब्लिक हॉलीडे। और आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि अगर कोई पेमेंट पब्लिक हॉलीडे को ड्यू होती है तो अगले दिन को भी अगर पेमेंट हो गई तो वैलिड मानी जाएगी धीमेजा जी। क्या ये जो 43BH वाली पेमेंट है जो हमने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को देनी है, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर मेरा पब्लिक हॉलीडे है, तो क्या एक दिन का लाभ हमें मिल सकता है सर? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है सर, लेकिन इन माय ओपिनियन सर ये बेनिफिट नहीं मिलना मिलेगा। चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा सर, उसका कारण है ये जो एक दिन एक्स्ट्रा देते हैं, किस में देते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज में। कि आपने ईएसआई भरनी थी, आपने पीएफ भरना था, आपने इनकम टैक्स भरना था, आपने जीएसटी भेजना था। इट इज ए कंट्रेक्चुअल पेमेंट बेसिस ऑफ योर एग्रीमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके। ये गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है। आपने कोई कोर्ट फीस जमा करानी थी, कोई इनकम टैक्स भरना था, कोई जीएसटी भरना था, कोई टीडीएस भरना था, कोई कोर्ट फीस भरनी थी, कोई ईएसआई की पेमेंट करनी थी, कोई पीएफ की पेमेंट करनी थी, तो जनरल क्लोजिंग एक्ट का सेक्शन 10 है सर। ये जनरल क्लोजिंग एक्ट का सेक्शन 10 है जो कहता है कि एक दिन आगे खिसक जाएगी। लेकिन मेरी ओपिनियन में ये पेमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं है सर, ये कंट्रेक्चुअल ड्यूज है। और देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड कंट्रेक्चुअल ड्यूज। जैसे दोनों में अंतर है, तो ये तो उसी पे होनी है सर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगली स्लाइड पे मैं पहले आपको ले जाता हूं अपॉइंटेड डे पे। नजर आ रहा है सर स्क्रीन पे अपॉइंटेड डे? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है। सेक्शन 2 क्लोज बी बी। ऑफ एमएसएमईडी एक्ट डिफाइन अपॉइंटेड डे सर। पढ़िएगा जी। अपॉइंटेड डे मींस द डे फॉलिंग immediately after expiry the period of 15 days from the day of acceptance or day of deemed acceptance। सर अपॉइंटेड डे कौन सा है राजेश जी, 15वां दिन या 16वां दिन? 15वां दिन है सर अपॉइंटेड डे क्या कह रहा है, डेज फॉलिंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो ये तो 16 16वां दिन दिन हो गए। हुआ हाँ। कि 15वां दिन हुआ? अच्छा। So the expiry is the 15th day. जी सर, जी तमीजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कमीशन इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि आप डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द जी 15th डे, तो 15वां दिन खत्म होने के बाद 16वां दिन आ जाएगा। जी 16वां दिन आ रहा है, यही बताना चाह रहा हूं। यही बिल्कुल ठीक है, 16वां दिन आएगा। बिल्कुल 16वां दिन आएगा। अपॉइंटेड डे मींस द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज। कहां से सर? अब ये जो चीज मैं बार बार रोक रहा हूं, कहां से ये 15 दिन या 45 दिन तमीजा जी? फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और हाँ, डे डीम ऑफ डे। डीम्ड एक्सेप्टेंस सर। यहीं पे रुकेंगे, पहले चर्चा करेंगे। पहले ये चर्चा यहां अपॉइंटेड डे तो धमीजा जी 16वां दिन है, फिर हमारे कानून में ये 15 दिन की बात क्यों हो रही है राजेश जी? वहां पे हम 15 दिन क्यों कह रहे हैं? दोबारा सेक्शन 15 पे ले जाऊंगा सर। यहां क्या लिखा सर? बिफोर दी अपॉइंटेड डे। सेक्शन 15 में क्या लिखा? बिफोर द अपॉइंटेड डेट। फिर क्या हो गया, 16 एक दिन पहले, 15 दिन आ गए फिर तो। इसीलिए 15 आ गए। तो ये कंफ्यूजन 16 और 15 का भी जो चल रहा है वो मैंने खत्म कर दिया सर। कुल अब मिलाकर दोबारा आइए 15 ही दिन है अपॉइंटेड हमारे पास। जी। कुल मिलाकर के 15 दिन ही है हमारे कुल पास। मिला के 15 दिन हैं, लेकिन बस। 15 दिन कब से? अब मैं एक केस स्टडी दे रहा हूं सर, एक वैकल्पिक उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आपको बात समझ आ जाए। ये 15 दिन गिनने राजेश जी कब से हैं? डे ऑफ एक्सेप्टेंस से
या डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है। दोनों की परिभाषा भी पढ़ाऊंगा आपको भी बाद में। पहले एक उदाहरण लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या समझाया गया है कि 43 BH के लिए हर क्या है, मान लो कि जैसे किसी का डिसअलाउंस करना है तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी लेजर की कॉपी ले रहे हैं ना, उसके लेजर की कॉपी में देख रहे हैं कि 45 दिन से ज्यादा कोई पेमेंट ओवर ड्यू तो नहीं, और अगर ओवर ड्यू है तो हमारा डिसअलाउंस बनता है। और लेजर में किस डेट को एंट्री होती है सर, जिस दिन का इनवॉइस है उसी डेट पे एंट्री हुई है। क्या जिस दिन मेरा इनवॉइस बना राजेश जी उस दिन मेरी एक्सेप्टेंस हो गई थी? नो नो, नहीं हुई थी ना सर। इस नहीं हुई पेज थी। को समझ लो, इस पेज को समझ लो हर, इसीलिए आपसे पूछा, आप जैसे लर्नेड महापुरुष से पूछा सर कि यह दिन एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने हर केरला से कोई कंजाइनमेंट मंगाई, दिल्ली केरला से कंजाइनमेंट चली सर से ऑन, अभी बात करते हैं कि 25 अगस्त को चली सर, और 25 अगस्त को उसने बिल बना दिया, रात को जाने में देरी हुई थी, ई इनवाइस बना हर 26 अगस्त को, जो ई वे बिल बनाते हैं हम जीएसटी के लिए। ट्रांसपोर्ट को माल दिया 27 तारीख को, 27 तारीख को वो ट्रांसपोर्ट चली, मेरे पास पहुंचा 30 में दिल्ली में, दिल्ली वाले लोकल ट्रांसपोर्ट ने मेरे पास माल पहुंचाया 2 तारीख में। तो सर बिल तो 25 तारीख का बन चुका था, मेरे पास आते आते 7 दिन तो पहले ही गुजर गए सर। ये 7 दिन का ग्रेस मेरे को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सर? मिलेगा सर, मिलेगा। 100% मिलेगा। अब आगे आइए, 2 तारीख पर राजेश जी के पास जब सामान आया, राजेश जी ने सामान काउंट किया सर, सामान जब काउंट किया सर तो आपने पाया कि मैंने तो किसी चीज के 10 पैकेट मंगाए थे, निकले 8 है सर। मेरी बात समझ आ रही है सर? जी 10 सर, जी मंगवाए सर। थे, निकले 8 हैं। राजेश जी ने इमीडिएटली फोन उठाया और फोन किया कि भैया मैंने तो 10 बोरी मंगाया था, 8 बोरी निकला ये सामान। तो राजेश जी की एक्सेप्टेंस हो गई थी क्या? नो नो। राजेश जी की एक्सेप्टेंस हुई नहीं थी। उसने इसके ऑब्जेक्शन को 2 बोरी भेजने को 2 महीने और लगा दिए सर। मेरी बात समझ आ रही है सर? जी सर, जी सर। तो आपके 45 दिन और 15 दिन कब से काउंट होने हैं? जिस आफ्टर दिन 2 मंथ्स। ऑब्जेक्शन रिमूव्ड कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है सर? ऑब्जेक्शन रिमूव्ड होगी, जिस दिन ऑब्जेक्शन रेज हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव्ड होगी। समझ रहे हैं राजेश जी जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है सर, कोई भी आपने ऑब्जेक्शन लग गया है तो ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद ही डेट काउंट होगी। काउंट होगी 45 दिन। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं, आपने यहां पर लेकिन एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी सर? आपने अगेन फोन किया। ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज्ड इन राइटिंग, लिख लीजिए सर, ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज्ड इन राइटिंग। अब फिर दोबारा आ जाइए मेरी पुरानी बात पे। मेरी पुरानी बात क्या कह रही है सर कि अगर आप उसको एसएमएस भेज देते, व्हाट्सएप कर देते तो काम चल जाता सर। अब राजेश जी हम पूछेंगे कैसे काम चलाएगा, अब तो टाइम ही निकल लिया, करनी थी तो 31 मार्च से पहले करते। हर हम कहते हैं ना पुराने दिन अच्छे थे, पुराने दिन अच्छे थे। आईटीओ पे जाते थे ना पहले, कोई पुराना लेजर बनता था तो पुराने से कागज पे बना के ले जाते थे राजेश जी, तो पुराने से कागज पे बना लीजिए इसको भी, बैक डेटेड बना लीजिए, और लाला जी को कह दीजिए कि मेरे से धंधा करना है तो चिट्ठी का जवाब नहीं देना, कोई ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं करनी। ये हमारी आपस की सेटिंग है सर। मेरी बात समझ आ गई सर? आप समझ पा रहे हैं सर जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्शन जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक ये 15 और 45 दिन नहीं होने। और आपने साथ ही फोन करके बोल देना कि भैया मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं, रिमूव करने की जरूरत नहीं, बस एक्सेप्टेंस कर ले कि ऑब्जेक्शन आई थी। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर यस सर, आपको यस सर। मिल जाता। अब दूसरी चीज,
बड़ी इंपॉर्टेंट ये है राजेश जी, ये ऑब्जेक्शन जो लगानी है ये किस चीज पे लगानी है? क्वांटिटी या क्वालिटी? बिल्कुल सही करे, या तो क्वांटिटी पे लगेगी या क्वालिटी पे लगेगी, या विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट भी हो सकती है। ओके ओके। यानी रिलेटिंग टू गुड्स होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि पिछली बार भी तूने मेरे को गलत माल दिया था मैं तेरा मान नहीं लेता भैया। मतलब देयर इज सम रेलेवेंस विद द डिलीवरी और कंसाइनमेंट, and this objection is to be raised in writing, and whatever objection you have that has to be mentioned in the letter. और एक काम और कर लेना, जब बैक डेटेड ही कर रहे हैं हम कुछ सर, तो एक काम और कर लेना। वो काम क्या कर लेना, एक चिट्ठी के बाद एक चिट्ठी और भेज देना कि भैया आपको बताए हुए इतने दिन हो गए, आपने जवाब नहीं दिया, मेरा ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं किया, और उसको तो आपने पहले ही बताया होगा कि जवाब देना ही नहीं। ठीक है सर, तो आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस को समझना पड़ेगा सर। अब आगे चलते हैं सर। इसमें पर्टिनेंट क्वेश्चन ये आता है राजेश जी की गुड्स की तो हमने ले ली, गुड्स को कहा है देखना है 15 दिन और 45 दिन फ्रॉम द एक्सेप्टेंस और डीम्ड। सर्विस में कैसे एक्सेप्टेंस होती है? मैं इसको अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल पे आता हूं। सर मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि मेरे लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, मेरे लिए कंपनी बना दो। सर मैंने उसके दिन भी अप्लाई किए, डीएससी भी अप्लाई किए, एमसीए में जो फॉर्म्स फाइल होने होते हैं फाइल करके कंपनी बना के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी, मैं कहता हूं कि जब सर्टिफिकेट उसके पास भेजा मैंने अपने बिल के हाथ, राजेश जी क्या मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई? आपने जो उसने काम दिया था वो काम कर दिया, और जिस दिन काम हो गया उसको सर्टिफिकेट को इनकॉर्पोरेशन की कॉपी भी भेज दी, मेमोरेंडम भी भेज दिया, आर्टिकल भी भेज दिया, और साथ में अपना बिल भी भेज दिया। तो क्या सर्विस कंप्लीट हो गई है सर? नो सर नो। तो कब होगी सर? अब जिसको आपने सर्टिफिकेट भेजा था उसने सर्टिफिकेट पढ़ा, कह रहा था जी ये तो कंपनी के में आपने कंपनी के नाम के स्पेलिंग ही गलत कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या कह रहा है कि आपने जो कंपनी बना के दी है उसमें कंपनी के नाम के स्पेलिंग ही गलत हैं। माय पर्टिनेंट क्वेश्चन हियर इज दैट वेदर एक्सेप्टेंस इज गिवन। सर्विस का केस भी दे दिया आपको सर, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। वो कह रहा था ये जी मैं तो पैसे उस दिन दूंगा, पहले मेरी कंपनी का नाम नाम ठीक करा दो। नाम आपने ठीक कराया, उसमें 25 दिन और लग गए, फिर आपने बिल दिया, फिर कह रहा अब ठीक है, अब मंगोगे 45 दिन बाद, उससे पहले डिसअनाउंस नहीं होना। दूसरा एग्जांपल ये जी बड़ा इंटरेस्टिंग, आपके गर्मी बहुत है सर, आपके ऑफिस का एसी खराब हो रहा था, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, यू कॉल सम इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स द एसी, कि भैया आ और मेरा एसी ठीक कर जा। वो इलेक्ट्रिशियन आता है सर, एसी रिपेयर करता है, और रिपेयर करने के बाद आपको कहता है ये जी इट इज ओके, क्या ये ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? कह रहा हाँ भैया कूलिंग बढ़िया आ रही है अब तो। चाय वाय पी, देखते 10 मिनट बैठ के कैसा आनंद आता है। तो जब आनंद आना शुरू हो गया चाय पीने के बाद, राजेश जी ने कहा ओके जा भैया काम हो गया बढ़िया। अभी वो राजेश जी के ऑफिस की सीढ़ियां ही नहीं उतरा था, एसी फिर काम करना बंद सर। राजेश जी ने फिर इलेक्ट्रिशियन को फोन किया और कहा कि भैया बंद हो गया, फिर कहता भैया दोबारा आने की दोबारा फीस लूंगा सर। यहां पर सर क्या सर्विस कंप्लीट हो गई थी? हो गई सर, जब मैंने हाँ कर दी तो हो गई। बिल्कुल हो गई। यहां पर वो 2 बार पेमेंट लेने का हक है। अगर आपको और टेस्टिंग करनी थी तो कह देते कि 2 दिन बाद आइयो भैया, फिर स्लिप साइन करके दूंगा, अभी बढ़िया चल रहा है। आपने उसे हाथ के हाथ दे के उसकी सर्विस कंप्लीट दे दी, अब अगली असाइनमेंट उसकी अगली कंसाइनमेंट है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल सर्विस पे ही सर, जो हम 31 मार्च की बैलेंस शीट में
ऑडिट फीस का प्रोविजन बना देते हैं, राजेश जी, क्या उसकी 45 दिन की गणना 31 मार्च से होनी है? जी हाँ जी राजेश भाई जी, साहब, जी जी सर जी। नो। जो हमने ऑडिट फीस का 31 मार्च को प्रोविजन बना दिया 1 लाख रुपए का, उसकी गणना के लिए 45 दिन 31 मार्च से देखेंगे क्या है? हाँ सर, प्लीज एक बार और बोलना, मैं जरा दूसरी तरफ था। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, जो ऑडिट फीस का प्रोविजन बनाते हैं हम किताबों में, हमने 31 मार्च में प्रोविजन बना देते हैं, 1 लाख रुपए से फीस थी आपकी, आपने जी एक जी। लाख रुपए ऑडिट फीस टेबल में खड़े कर दिए, हम्म। तो क्या 31 मार्च से लेकर 15 मई तक उसकी पेमेंट होनी चाहिए? नो, नो सर, नो। अगेन वेरी राइटली सेड, क्योंकि सर्विस तो कंप्लीट हुई नहीं। सर्विस कब कंप्लीट होगी? जब सितंबर में आप ऑडिट करेंगे। जब तक यह ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक बैलेंस शीट साइन नहीं होगी, ये सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है सर। और अगर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो आपकी लायबिलिटी बनी ही नहीं है। नहीं बनी। तो ना तो पिछला साल की फीस टाइम पे मिलनी है, ना अगले साल की टाइम पे मिलनी है सर। तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोग हमें पढ़ा रहे हैं कि हमें फायदा हो गया, हमें कोई फायदा नहीं दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहिबान। हमें तो उन पेमेंटों का फायदा हुआ है सर जो साल के दौरान, जो साल के दौरान। अब इसमें हर दो चार चीजें और हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमें समझनी पड़ेंगी। मैंने आपको एक्सेप्टेंस भी समझाने की कोशिश की, डीम्ड एक्सेप्टेंस भी समझाने की कोशिश की सर। सर अब हमें समझना पड़ेगा राजेश जी कि गुड्स क्या है, गुड्स क्या है। अब इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। राजेश जी का मनी लैंडिंग का बिजनेस है। इन्होंने किसी को 10 लाख रुपए दिए थे, वो 10 लाख रुपए दे नहीं रहा, तो क्या 43BH में डिसअलाउंस हो जाएगा सर? नो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा राजेश जी? क्या कहीं लिखा कि गुड्स में मनी इंक्लूड नहीं है? क्या गुड्स को कहीं डिफाइन किया गया सर? यस, गुड्स हैज आल्सो बीन डिफाइंड। और क्या लिखते हैं? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी, शेयर्स एंड एक्शनेबल क्लेम्स। तीन चीजें इंक्लूड नहीं होनी। तो यहां पे मनी में काम कर रहे हैं जय जी, तो इन पे तो 43BH कभी बनना ही। सिमिलरली, एक बिल्डर ने किसी के पैसे देने हैं, एसएससी तो इंक्लूड है। जिसके देने हैं वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, लेकिन उससे उससे किसकी चीज की सब्सिडी दी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेन गुड्स है ही नहीं सर। शेयर्स में डील कर रहा हूं, शेयर्स के पैसे नहीं दे रहा, ऑफ मार्केट खरीद लिए, नहीं लगना सर। 43BH एप्लीकेबल ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, सर्विस को भी समझेंगे। सर्विस इज अगेन वेरी, एनी काइंड ऑफ सर्विस, एनी काइंड ऑफ सर्विस सर, एनी काइंड ऑफ सर्विस। इसको हर मैं बड़े ही मतलब अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। सपोज कीजिए एक गरीब आदमी था, परमात्मा को प्यारा हो गया, कुछ लोगों ने उसका दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार जाके कहने के बाद शमशान घाट वाले को कह रहे कि हमारे पास तो लकड़ी के पैसे नहीं है भैया, हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है। क्या इस पे भी 43BH लग जाएगा राजेश जी? क्या ये भी डिसअलाउड हो जाएगी? क्या इसकी रिकवरी में एमएसएमई समाधान पे कर लूं? कानून तो हर कहीं मना नहीं कर रहा। गुड्स है लकड़ी, तो मैंने बेची, मेरे पैसे नहीं दे रहे, तो कानून में मेरे को वैधानिक अधिकार है, और कह रहे नहीं पेमेंट करेंगे, और मैं बिजनेसमैन हूं और किताबों में वो खर्चा बुक कर रहा हूं उस चीज का, तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगी सर। इस तरह है फ्रेंडली। सिमिलरली,
अगर मैंने हमारी कोई पेमेंट पीएम ऑफिस ने करनी है, प्रेसिडेंट ऑफिस ने करनी है, और वो नहीं कर रहा, तो क्या पीएमओ ऑफिस की जो बैलेंस शीट बनेगी ये खर्चा डिसअलाउड होगा? अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज जो हैं उन्हें सर कोई रिटर्न नहीं भरनी होती। जब 43 बीएच पे बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर पे लगता है और वहां पे कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, गवर्नमेंट इज डूइंग गवर्नेंस, उनकी पेमेंट डिसअलाउड नहीं होनी। तो हर राजेश जी क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्ट गेम खेल लिया आपसे। स्मार्ट गेम क्या कि अपने डिपार्टमेंटों की जो पेमेंटें हैं वो तो 43 बीएच में डिसअलाउड होंगी ही नहीं जो उन्होंने देने हैं। दुनिया की डिसअलाउड कर दी, क्योंकि उन्होंने तो कोई ये रिटर्न ही नहीं भर दी, कोई ऑडिट ही नहीं कराना, कोई 43 बीएच एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये तो एसएससी पे लगता है ना, एसएससी की डिसअलाउड होनी है, देखो उन्हें तो सर फिर दोबारा 15 पे वापिस आ रहे हैं। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विस टू एनी बायर, the buyer shall make payment thereof on or before the date agreed upon between him and supplier in writing, where there is no agreement this before appointed date. अब हमें समझते हैं सप्लायर को। अब तक हमने सारी चर्चा कर ली, अब सप्लायर कौन है सर, क्योंकि जब तक सप्लायर नहीं है तब तक नहीं है सर। सप्लायर मीन्स ए माइक्रो or small enterprise which has filed a memorandum with the authority referred to in subsection 1 or section 8। राजेश जी एक चर्चा बाजार में वो चल रही है, चर्चा ये चल रही है कि जिन लोगों पे उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिनकी आपने पेमेंट करनी है, उन्हीं पे लगेगी, उन्हीं पे सेक्शन लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। कहां लिखा सर? अभी तक जो हमने चर्चा की 43 बीएच पर कहीं आपको नजर आया लिखा कि उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए? वो कानून वालों ने कहीं चर्चा की, लॉ मेकर ने कहीं चर्चा की? फिर हम क्यों कहे जा रहे हैं, क्यों इस इंटरप्रिटेशन पे पहुंचे हैं कि जो लोग उद्यम रजिस्टर्ड होंगे, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी देंगे, उनका 43 बीएच का डिसअनाउंस करेंगे, बाकियों का करेंगे नहीं। एक चीज और हमने अपने आप ही बना ली सर, वो बना ली 2 जुलाई 21 वाली। 2 जुलाई 21 से ट्रेडर को इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन उसका जो बेनिफिट था ओनली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग था। ये दो चीजों पर मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और राजेश जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत फोन आने वाले हैं इसके बाद। ठीक है सर, ठीक है। इसमें ये समझने की बात है कि जो ये ट्रेडर्स को हर इंक्लूड किया गया, इसकी परिभाषा में ये किया गया सर एक ऑफिस मेमोरेंडम से, और जो हमारी एमएसएमई की परिभाषा बदली गई सर, वो बदली गई एक नोटिफिकेशन से। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं सर। 2006 से जब से राजेश जी ये कानून आया है, इसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं हुई। ये जीएसटी जैसा कानून नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे हाँ इसकी डेफिनेशन तो बदली अभी 2020 में, माइक्रो की लिमिट भी बढ़ाई, स्मॉल की भी बढ़ा दी, मीडियम की भी बढ़ा दी, कहेंगे ना सर। तो ये लिमिट कैसे बढ़ गई? ये एक सेक्शन है एमएसएमई एक्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, जहां पे उन्हें लगता है कि इस एक्ट में कोई चेंज करने हैं, या कोई डेफिनेशन को बढ़ाना है या घटाना है, या कुछ लोग मिलाने हैं या बाहर निकालने हैं, तो सर वो किससे करता है? बाय ब्रिंगिंग ए नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। The central government has exercised this power given in section 9 of the MSMED Act and bring a notification from 1st July 2020 and enhance the scope of the MSMEs। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर? एक तो होता है सर लॉ, पहले समझिए, दूसरा होता है नोटिफिकेशन, और तीसरा होता है सर ऑफिशियल मेमोरेंडम। आप हमारे व्यूअर्स को यह समझना पड़ेगा सर कि नोटिफिकेशन और ऑफिशियल मेमोरेंडम में कोई फर्क है या दोनों सेम है?
जी विजय जी, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल मेमोरेंडम में कोई फर्क है या दोनों सेम है? तो डिफरेंट है दोनों। दोनों डिफरेंट है, राजीव जी कह रहे हैं। जब दोनों डिफरेंट हैं तो सर मैं यही बताना चाहता हूं कि ऑफिस मेमोरेंडम की पावर सिर्फ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के लिए है डिपार्टमेंट को। ऑफिस मेमोरेंडम से आप लॉ गवर्न नहीं कर सकते सर। गेटिंग माय पॉइंट? ऑफिस मेमोरेंडम ला के आप कंट्री का लॉ नहीं बना सकते। और 2 जुलाई 21 वाला ऑफिस मेमोरेंडम है सर। ऑफिस मेमोरेंडम है जो एमएसएमई मिनिस्ट्री को डायरेक्ट कर रहा है कि आप ट्रेडर्स को भी ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दो। दिस इज नॉट मेड अमेंडमेंट इन द लॉ रिमेन्स द सेम। और सेकंड चीज जो फिर आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सर। कहां लिखा उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? ये क्या कर रहे हैं सर, पढ़िए आप सेक्शन 2 क्लोजर। सप्लायर मींस ए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। अभी इंटरप्राइज को भी समझेंगे हर क्या है। अभी माइक्रो और स्मॉल समझिए पहले। विच हैज फाइल्ड ए मेमोरेंडम with the authority referred to in subsection 1 of section 8। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन की तो खैर बात ही नहीं कर रहा है, ये तो मेमोरेंडम की बात कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट सर? ये मेमोरेंडम सर 2016 से पहले फाइल होता था। और अभी तक मैंने आपको समझाया कि कानून तो चेंज ही नहीं किए इन्होंने एक शब्द भी। वहां पे मेमोरेंडम का मेमोरेंडम ही है। और उस मेमोरेंडम के बाद क्या आ गया? अधोग आधार आ गया। वो अगेन कहां से आया था? थ्रू नोटिफिकेशन आया था। अब 1 जुलाई 20 से उद्योग आधार को उद्यम में चेंज कर दिया सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है राजीव जी, यहां पर एक भला प्राणी जिसपे उद्योग आधार है लेकिन उसे उद्यम में कन्वर्ट कराना भूल गया, तो क्या उसका राइट खत्म हो जाएगा पेमेंट डिसअलाउड वाला? कंटिन्यू। No, no. तो फिर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं हम लोगों को? क्यों समझ रहे हैं हम ऐसी बातों को सर? मेरे पास था रजिस्ट्रेशन, मेरे से छोटी ही भूल ये जरूर हुई है कि मैं उसको उद्यम में कन्वर्ट कराना भूल गया सर। या मेरे को पता नहीं था करवाना है। मैं तो पुराने वाले ही संभाले बैठा हूं, वही बिलों पे लिख रहा हूं, वही सब कुछ कर रहा हूं। यहां पर फिर समझना पड़ेगा, फिर चेंज जो हुआ नोटिफिकेशन से हुआ। जो हर 1 जुलाई 20 वाला नोटिफिकेशन आया, ये अगेन ये कहता है कि एवरी उद्योग आधार होल्डर हैज टू कन्वर्ट देमसेल्फ। जैसे वैट से आपने जीएसटी में माइग्रेशन किया था ना सर, वह उद्योग आधार से उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेशन करना था। इस माइग्रेशन की डेट उन्होंने हर 3-3 बार बढ़ाई। उसके बाद भी जिन लोगों ने नहीं किया, अब ये कह रहे हैं कि उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिप्लेस किया जा रहा है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन इक्वलेंट टू मेमोरेंडम माना जाएगा जो रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। जिस वजह से हमने ये इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अगला सवाल फिर जो मैंने बोला कि उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी और वॉलंटरी सर। विजय जी, ये बातें मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि पहला साल है, अभी कर लेना सर, क्योंकि इसके बाद इनकम टैक्स इसका भी 148 बनाने वाले हैं। अभी तो आप ट्रेडर को भी छोड़ दो, उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले को भी छोड़ दो, जिसको छोड़ना छोड़ दो, लेकिन क्या वो आपकी बात मान जाएंगे? No. वो तो डिसीजन आने के बाद नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, उसके बाद नहीं मानते। 148 में रिट लगानी पड़ रही है आपको, और हर बात यस, यस। समझानी पड़ रही है, भैया ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये वैसा था। अब तो आपने बीइंग ऑडिटर जो प्रोडक्शन लेनी है वो ले लो, लेकिन एसएससी का क्या हश होगा इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता सर। क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अगेन वॉलंटरी, नॉट मैंडेटरी है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये अगेन कानून में लिख रखा है इन्होंने। क्या लिखते हैं सर? सर ये लिखते हैं एन इंटरप्राइज में एट इट्स ओन ऑप्शन। क्या मतलब होता है सर इसका? हिंदी करके बता दीजिए ये चीज। मे एट इट्स ओन स्वयं इच्छा ऑप्शन। से। स्वेच्छा है मेरी, मेरी स्वेच्छा है, मैं लूं
या ना लूं सर, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो सरकार के इतने बड़े लाभ के लिए जिसके लिए मैं उस पर हाथ जोड़ के गया था, क्या मेरे को वंचित रख दिया जाएगा सर? नो नो, वंचित बिग नो। नहीं रखा जाएगा। और ये एक बात और है हर, अब हमें बहुत बहुत लर्नर स्पीकर आते हैं जो हमें ये पढ़ाते हैं कि सर अगर कानून पढ़ना हो, अगर कानून पढ़ना हो तो उसके हाथ जो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट आता है सर राजीव जी, वो जरूर पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना सर सभी लोग, सभी लर्नर लोग ये कहते हैं, अगर इंटेंशन ब्रिंगिंग द अमेंडमेंट हमें पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो प्लीज रेड दी प्रोविजन एक्सप्लेनिंग दी मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल। मैं फाइनेंस एक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फाइनेंस एक्ट बन चुका है। अब ये इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं सर कि यहां पर भी मेमोरेंडम में क्या लिखा सर इन्होंने, पिछले साल का जो बजट आया था सर उसके 7 पिलर थे सर, और उन 7 पिलर में है रजेश जी एक पिलर था जिसका नाम था सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर। क्या नाम था रजेश जी? सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर, यानी सामाजिक आर्थिक उदारता उपाय। सोशल का मतलब क्या होता है राजेश जी? कि जो चीज आ रही है वो पूरे समाज के लिए आ रही है। और 43BH वाली अमेंडमेंट को इन्होंने स्थान कहां दिया सर? सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर, यानी द इंटेंशन ब्रिंगिंग द अमेंडमेंट इन सेक्शन 43B इज टू प्रोवाइड सर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। And social economic welfare you can't restrict only to those person who is having udyam registration, Rajiv ji, getting my point sir? उसका जो चीज सारे समाज के लिए आई है उसका लाभ आप चंद लोगों तक जिन पे उद्यम रजिस्ट्रेशन है कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? मेरी सिर्फ ये अपनी मंशा है। जब सरकार ने इसको वहां स्थान दिया तो आपको भी समझना पड़ेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए नहीं आया जो हम एक रिस्ट्रिक्शन क्लॉज बनाकर बाहर निकाली जा रहे हैं। हमने तो अपनी नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज अलग से बना दी कि ट्रेडर को इंक्लूड नहीं करेंगे, उद्योग आधार वालों को नहीं करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले जिन पे नहीं है उनको नहीं करेंगे, मीडियम को नहीं करेंगे, मीडियम को तो खैर उन्होंने कहा है, या इसको नहीं करेंगे उसको नहीं करेंगे। when some provision is intended to give social economic welfare measure, that means it is for the benefit of a whole economy. It cannot be restricted to a small part of people. Only this thing I want to convey. Coming back to the definition of supplier sir, supplier means a micro and small enterprises which has filed a memorandum with the authority referred to in subsection 1 of section 8 and 8। सर अब एक मिनट यहां रुकिएगा, यहां पढ़िएगा अब आगे, एंड इंक्लूड्स। ये जी ये वॉइस को हो रही है, एक मिनट आप बंद करा देंगे वॉइस को ये। एंड इंक्लूड्स, फर्स्ट सेकंड पढ़े ना पढ़े सर, थर्ड क्लोज पढ़े 2N के नीचे एंड इंक्लूड्स में इन्होंने क्या लिखा सर? प्लीज, एनी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी बाय वट एवर नेम कार्ड। सर सेक्शन 2N को हमने अधूरा पढ़ा अब तक, यहां तक पढ़ा सेक्शन 8 तक और खत्म कर दिया। ये चीज के आगे भी कुछ लिखा था, आगे क्या लिखा था? एंड इंक्लूड्स। ये क्या कह रहा है? तीसरी क्लोज पढ़िए, एक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी बाय वट एवर नेम कॉल्ड, रजिस्टर्ड or constituted under any law for time being in force and engaged in selling good produced by micro or small enterprises। यहीं रुक जाइए सर। हर ट्रेडर का काम क्या होता है राजेश जी? एक माल जगह से खरीदना खरीदना, बेचना, दूसरी बेचना। जगह बेचना। यहां पे ये क्या लिख रही है? एंगेज इन सेलिंग गुड्स। ये काम कौन करता है सर? ट्रेडर ही करता है। ट्रेडर ही करता है। वो कह रहा है कि एक ट्रेडर अगर किसी दूसरे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के गुड बेच रहा है तो वो सप्लायर की परिभाषा में आता है।
ये मैं नहीं कह रहा, 2N कह रहा है। अगर मेरी इंटरप्रिटेशन में कहीं गलती लग रही तो खैर मेरे को सुधार भी देना, जो लोग मेरे हाथ बने हुए हैं। कानून में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ये क्या है राजेश जी कि प्रोप्राइटरशिप बाहर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने किस किस पे लगाया, कंपनी पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, ट्रस्ट पर और बॉडी पर। यानी ओके पार्टनरशिप ओके तो कई ओके। कंस्टिट्यूट होती है ना, प्रोप्राइटरशिप वो बाहर हो जाएगी। अदरवाइज कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप पार्टनरशिप, फर्म भी कवर हो जाएगी। पार्टनरशिप, एचयूएफ, एचयूएफ। एचयूएफ भी तो अब आप डीड से ही बनाते हो। वैसे तो आर्टिफ हमारे ऊर्जा जी समझाते हैं हमेशा, एचयूएफ बनती नहीं, अपने आप होती है, लेकिन वहां पर आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन कंपनी, कोऑपरेटिव, ट्रस्ट और जो उन्होंने लिख दिए, वहां तो आप पे स्कोप नहीं है सर। वहां पे तो मेरे वाली एडवाइज ही माननी पड़ेगी आपको, जो मैंने आपको शुरू में समझाई। चलिए सर, सप्लायर मैंने समझा दिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब दो चार चीजें सर क्या है जो अलग से, तो ये चीज 2 घंटे है मेरे पास, 1.5 घंटे हैं। 1.5 घंटा ले लो, बाकी सर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है सर, 1 घंटा तो हो और भी गया बाकी, सर। बाकी सर आप मेंबर जब तक चाहें। ठीक है सर, मैं 15-20 मिनट में बोल लेता हूँ, 15-20 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है सर, अब दो चार चीजें और जो मेरे को बतानी है सर। पहली चीज है, ये क्या कहता है सर, सेक्शन डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल पे ही 43BH लगना है। मैंने, सर मैं एसी में डील करता हूं, मैं एसी में डील करता हूं। मैंने अपने व्यापारी से 500 एसी मंगाए सर, उसमें से 10 एसी अपने ऑफिस में ही लगा लिए एज ए फिक्स एसेट, और अभी 500 में है किसी की भी पेमेंट नहीं की। तो डिसअलाउंस कितने का होना है सर, डिसअलाउंस कितने का होना है सर। भाई वैसे तो 500 का ही होना है, क्योंकि 500 की तो पेमेंट करनी है उसने। उसने चार सर सौ अब नब्बे की मैंने, थोड़ी करनी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज अभी मैंने बड़े जोर दे के बोली राजेश जी, क्या बोला है अभी मैंने, डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल। आपने परचेज में कितना डेबिट किया, परचेज में 490। 490। तो 490 डिसअलाउड डिसअलाउड। 43BH किसको कर रहा है, वो ठीक है, 490 का ही होगा। 490 का होना है। इसलिए कानून को ज्यादा तोड़ मरोड़ के पढ़ना है सर, डिडक्शन अदरवाइज अलाउएबल। और जहां पर सीधी सीधी फिक्स एसेट की परचेज है, जो आप पीएल में डेबिट ही नहीं कर रहे या ट्रेडिंग में नहीं कर रहे, उस पर 43BH का डिसअलाउंस नहीं बनेगा सर। एक पूछ रहे हैं जीएसटी का क्या होगा सर। सर आ रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 ले रहा हूँ, लोगों की क्वेरीज न कम से कम हो जाए, तो पहले हाँ। उसके लिए ही मैं आ रहा हूँ सर। अब दूसरी चीज जो आप समझिएगा सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इनवाइस है सर वही मेरा एग्रीमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि परचेज ऑर्डर है वो मेरा एग्रीमेंट है। क्या दोनों को हम एग्रीमेंट मान सकते हैं। सर मैंने अभी एक बुक लिखी है, 400 पेज की बुक है, सिर्फ 43BH पे सर। इनवाइस को आप एग्रीमेंट नहीं मान सकते, ये आपका पेमेंट प्रूफ का डॉक्यूमेंट है सिर्फ सर, एविडेंस है कि मैंने पेमेंट लेनी है। इट इज नॉट एग्रीमेंट। बट परचेज ऑर्डर में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है सर, कितने दिन में माल आएगा, इतने दिन में पेमेंट होगी, भाड़ा कौन भरेगा, पेमेंट कैसे होगी, वापसी का कैसे होगा, किस जगह केस होगा, सारी चीजें हम परचेज ऑर्डर में डिफाइन करते हैं। तो परचेज ऑर्डर कैन बी ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट, बट इनवाइस कैन नेवर बी ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट। और मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक्साइज के टाइम की काफी केसेस में ये कहती हैं कि इनवाइस को आप एग्रीमेंट नहीं मान सकते। वो तो एक एविडेंस है इस चीज का कि आपने इस आदमी से पेमेंट लेनी है। आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं सर, अभी बात हमें ये डिसअलाउंस राजेश जी देखना कहां से है, जो भी आपने पूछा। जब हम लेजर को देख के ऑडिट कर रहे हैं, तो लेजर में तो हर अमाउंट कौन से आ रहे हैं राजेश जी, इंक्लूडिंग जीएसटी आ रहे हैं। मान लो एक पार्टी के 25 बिल पेंडिंग है राजेश जी, और 25 बिलों में जीएसटी भी जुड़ा हुआ है। और अब
आप कहेंगे कि इसमें तो हम पेबल देखना है, तो सम पेबल में तो 18% जुड़ के आ रहा है सर। तो डिसअलाउंस इंक्लूडिंग जीएसटी होगा कि विदाउट जीएसटी होगा सर? यही क्वेश्चन था राजेश जी आपका। जी सर, जी सर। अगेन put your emphasis on the word deduction otherwise allowable. अगर आप इंक्लूसिव बेसिस पे किताबें बना रहे हैं और आपने डिडक्शन ली है जीएसटी की भी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन तो जीएसटी इंक्लूड होगा। और अगर आप किताबें एक्सक्लूसिव बेसिस पे बनाते हैं सर, फिर ये इंक्लूड नहीं होगा सर। इसके बाद आगे चलते हैं सर। वैसे जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा उसे, अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसकी। जी सर, If it's more than 6 months outstanding, the credit, you won't get the input credit for क्रेडिट नहीं 18 मिलना days. सर, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे वो रिवर्स करना खर्चा पड़ेगा ना, एक बार हाँ, तो वो- मिल जाएगा वो सर, तो रिवर्स फिर करना reverse- पड़ेगा, खर्चे में तो है ही है। उसके बाद आगे चलिए सर, कैपिटल गुड्स का मैंने बता दिया। अब एक चीज और लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ये जो लोग कैश बेसिस ऑफ सिस्टम अकाउंटिंग अडॉप्ट करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कई बार कह देते हैं कि हम कैश सिस्टम पे किताबें बना रहे हैं, तो क्या हर हमारे पे 43BH लगना है? क्या लगना चाहिए 43BH? सर, सर लगना नहीं चाहिए कि लगना चाहिए, क्योंकि अच्छा, कैश बेसिस में क्या होता है, ऑन पेमेंट बेसिस ही तो एंट्री करते हैं। और 43BH क्या कहता है? डिडक्शन अलाउएबल ऑन पेमेंट बेसिस। तो सर सेक्शन जब एक्चुअल 43B पेमेंट होगी पेमेंट पेमेंट ले बेसिस पे लेना। है सारा शुरू से। नहीं तो सर हम यहाँ दे 15 दिन और 45 दिन का कोई वो नहीं है। कोई नहीं है, आनंद लो पूरा। क्योंकि आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कब करते हो? जब कैश आती है या कैश जाती है। कैश सिस्टम तो होता ही हुई या ड्यू तो कुछ करते ही नहीं। आपके कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डेटर क्रेडिटर आते हैं बैलेंस शीट में? कभी कभी भी नहीं आते। जब मेरे क्रेडिटर ही कोई नहीं है, मैं परचेज कब जमा करूंगा? जब पेमेंट करूंगा सर। वही तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं। और गवर्नमेंट भी तो यही कह रही है कि जब पेमेंट करोगे खर्चा ले लेना। हम कब मना कर रहे हैं आपको? तो फिर तो ये 43 बी है सर, ये तो प्रोप्राइट मैंने प्रोप्राइटरी आपको कर शुरू सकता है में ही कैश कहा था बेसिस। सर, आधे से ज्यादा लोगों का खत्म कर दूंगा। तो जिनकी किताबें आप कैश में बना लोगे, बना लो, चेंज हो जाएगा। नहीं तो कैश की किताबें तो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप की बनेगी, बाकी तो बनेगी क्यों? नहीं। क्यों नहीं कंपनी को बनेगी सर? छोड़े इनकम सबकी टैक्स बन पे सकती है दोनों सर। मेथड परमिटेड हैं। नहीं सर, कंपनी का भी कंपनी बना लो। वगैरह की क्यों बनेगी? कंपनी को छोड़े सभी बनेगी राजेश जी। सर अच्छा कंपनी अच्छा। की, सर प्लीज प्लीज राजीव जी, कंपनी में भी कंपनी एक्ट में कहा गया है, जो की अगर इनकम टैक्स के लिए जो बुक्स बनानी है, जो टैक्स ऑडिट कराना है, वो कैश बेसिस पे अलग बन सकती हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट में कहा गया सर। इफ यू आर मेंटेनिंग टू सेट बुक्स ऑफ अकाउंट, देन यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट। तो कैश सिस्टम पर नहीं लगना है। अब दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो लोग 44 AD में जा रहे हैं सर, 3 करोड़ तक वाले, या ADA में जा रहे हैं, या AE में जा रहे हैं, क्या वहां पर 43BH का डिसअलाउंस करना है सर? नो सर। वाई नो सर? सर देयर नो बुक्स ऑफ अकाउंट वी आर टेकिंग ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। Sir, please try to appreciate this section starts with a non-obstain clause. Non-obstain clause very clearly state that notwithstanding anything contrary contained in section 28 to 43C, और 43C तक की जब बात की तो 43B भी उसमें आ गया। तो यहां पर क्या माना जाएगा? जो 43BH का कोई डिसअलाउंस बन भी रहा था, तो मेरी डिडक्शन डीम्ड टू बी अलाउड है, जो कहते हैं वो डीम टू बी अलाउड बन ली जाएगी। अभी मैंने कहा कि फिक्स एसेट पे नहीं लगना है सर। क्या फिक्स एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और पीएल में डेबिट कर रहे हैं, उतना कंपोनेंट डिसअलाउड होगा राजेश जी? अभी आपको फिक्स एसेट समझाया ना मैंने, 20% आपने उस पर डेप्रिसिएशन ले लिया, उसकी तो डिडक्शन भी क्लेम कर ली, क्या 20% पे लग जाएगा सर?
No, sir. The again answer is no, because depreciation is not a deduction. Please read section 32 of the Income Tax Act. In the whole act, the word depreciation allowance is used. Depreciation is a allowance, not deduction, sir. Not expenditure. Not expenditure. Another very important point, सर एक बड़ा अच्छा और पॉइंट है कि क्या जो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर AS22 जो डेफर्ड टैक्स की बात करता है, और आपको पता है जनरली हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वगैरह छोटी नॉन कॉर्पोरेट एसेसिस में डेफर्ड टैक्स का ये स्टैंडर्ड लगाते ही नहीं. वी आर नॉट फॉलोइंग दिस. But after coming of this provision, it is mandatory to follow for AS22. Why I am saying that? अब समझिएगा सर, राजेश जी इस साल तो डिसअलाउड हुई, अगले साल जब पेमेंट करोगे खर्चा मिल जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को जन्म दे रहा है, जो पहले प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता था. तो आप ध्यान कर लेना, जिन बैलेंस शीटों में आप 43BH का डिसअलाउंस कर रहे हैं कितने भी अमाउंट का, वहां पर ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी आएगी सर. ओके. मैंडेटरी हो गया इस साल है फॉलो करना ऑडिट्स में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है सर. तो ऑल द व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज नोट डाउन इन देयर डायरीज कि wherever there is a disallowance of section 43B, it is mandatory to make the provision of deferred tax asset or deferred tax liability as the case may be. ओके सर. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये मैं बताना चाहूंगा सर, अगर आपने पेमेंट चेक से की है सर, आपने जिनकी भी पेमेंट ड्यूस हो रही थी 31 मार्च को चेक काट दिए सर, कह रहे नील खाते, और बैंक में वहां पे दिखा दिया चेक इशूड बट नॉट प्रोवाइड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सर राजेश जी इसका क्या होना है? सर आप ही बताओ इसका. ये क्वेश्चन एक ऐसा है सर, मैं बोलता अच्छा नहीं लगता, हमारे गुरुजी ने बड़ी जगह बताया है, लेकिन सर 2-3 केस लास हैं, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली और जो बेसिक प्रोफेशन होना चाहिए इस सेक्शन का डिविजन ना हो, बिल्कुल ठीक बताया है कि अगर आपने ऐसे चेक काट रखे हैं हर पार्टियों को जो 3-3 महीने तक क्लियर ही नहीं हुए आगे, तो 43BH लगेगा. लेकिन यहां पर ये 2-3 चीजें ये हैं कि अगर आपने ये एक्सेप्शन में किया, एक्सेप्शन मीन्स आपके 100 क्रेडिटर थे, 99 थे, एक में आपने कहा कि इसको चेक दे दिया और वो चेक आगे पास भी हो गया, तो 43BH का रिगार्डिंग में एक जजमेंट अभी आपको देने वाला हूं. जो जजमेंट राजेश जी बड़ी क्लियरली कहती है कि आपके पार्टी के पैसे देने थे, आपने उसे अकाउंट पे ही चेक दिया, और अकाउंट पे ही चेक जिस डेट का था उस डेट पर वो प्रेजेंट हुआ और उस डेट पर वो क्लियर्ड भी हो गया. तो आपका जो चेक की पेमेंट डेट है वो डेट मानी जाएगी जिस दिन आपने चेक इशू किया था. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड सर, कि आपने जिसकी पेमेंट दी थी उसे अकाउंट पे ही चेक दिया है, चेक आज की डेट में इशू किया है, पेमेंट 3 महीने बाद होनी है, जिस डेट का वो चेक था उस डेट को वो प्रेजेंट किया गया और उस डेट को वो पास अगर हो गया तो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाएगी सर? जिस दिन चेक Date of check issue. जजमेंट का नाम लिखिए सर. अब पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं फिर जजमेंट का नाम भी बताता हूं. पहले ये कहते हैं द चेक शुड बी करंट डेटेड नॉट प्री डेटेड. चेक शुड बी करंट डेटेड नॉट प्री डेटेड. The check must not be bounced later on. Third, there should be no conflicting clause in the buyer and supplier agreement regarding check payments. चौथी चीज, the agreement should not specify solely payment through RTGS, UPI or NEFT. If all the 4 conditions are satisfied, the date of actual payment will be the date when the check is handed over to the payee, not the date of realization.
राजेश जी अगर ये 4 कंडीशन पूरी होती हैं तो ये कह रहे हैं कि ये माने जाएगा। और केस का नाम है सर के सरस्वती के कल्पना वर्सेस PSS सोमा सुंदरम चिट्टेर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1989, where Supreme Court quoted that where a payment is made by a check and subsequently honored and encashed, the payment is considered to have been made on the date when check is issued or handed over to the party. The court emphasizes that check payment is a common occurrence in modern life unless there is a specific requirement for cash payment or payment through any other mode. Check payment should be considered as तो valid तुम्हारी नाराज हो रहे तुमसे। once the check is encashed. Getting my point, sir? और इसके बाद एक और जजमेंट है, दैट इज के वेंकटा रेड्डी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर इसमें जो है हम 20% अपील में जाने के लिए जमा कराना होता है या कहीं कराना होता है, किसी ने इनकम टैक्स जमा कराना था, उसने लास्ट डेट पे हर बैंक बंद था, उस डेट का चेक बना दिया। इनकम टैक्स वालों ने कहा चेक तो 4 दिन बाद इनकैश हुआ है, तो हम तो तेरे अपील करने का टाइम निकल गया, तो तेरे को हम कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं देंगे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जब आपको चेक दे दिया था और चेक लेते हमें आपने मना नहीं किया, तो वो डेट पेमेंट मानी जाएगी जिस दिन चेक हैंडेड ओवर किया गया। एक और जजमेंट है सर, प्रयाग पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों जजमेंट ये कह रही हैं कि चेक इशू की डेट चेक पेमेंट की डेट मानी जाएगी सर। लेकिन मैं सभी व्यूअर्स को, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों को, जो भी ये व्यूज देख रही है वेबिनार, उनको ये एडवाइस भी करूंगा, ये ब्लैंकली सब केसेस में नहीं करना। यूज दिस एडवाइस इन एक्सेप्शन ओनली सर। जहां कोई और गुजारा नहीं चल रहा तो वहां पर इसका फायदा ले सकते हो, लेकिन वो फायदा लेने का टाइम भी अब निकल गया। कारण क्या, 3 महीने का चेक होता है, अगर आपने 31 मार्च से पहले भी दिया तो 30 जून तक क्लियर हो जाना चाहिए था। उन पार्टियों में जरूर ले सकते हो जहां 30 जून तक अगली पेमेंटें हुई हैं सर, कि ये पिछली पेमेंट ही थी, by quoting these judgments. Another very important question, sir. अब सर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अभी तक हमने 43 BH पे बड़ी चर्चा कर ली सर। सेक्शन 16 भी है सर। सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर आपकी पेमेंट डिलेड पेमेंट है सर, जो 15 दिन और 45 दिन में नहीं हुई, तो उस पेमेंट के ऊपर आपने ब्याज देना है सर। और ब्याज कितना देना है? 3 टाइम्स ऑफ RBI रेट देना है। फादर ये ब्याज मंथली काउंट होना है, और ये ब्याज साधारण ब्याज नहीं होगा, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा। 3 बातें मैंने बता दी। अब ये 43 BH रजिस्ट्री ज्यादा खतरनाक है कि ब्याज ज्यादा खतरनाक है? ब्याज ज्यादा खतरनाक है सर। ब्याज इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जो हमारे किसी हाँ। मेंबर ने जिसका रोना ही नहीं रोया। द इंटरेस्ट इज मोस्ट डेंजरस प्रोविजन, और वो ऐसा प्रोविजन है जो 2006 से है। यही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कह रही है कि 2006 से था ये कानून, मैंने तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पहले तुमने कंप्लाई नहीं किया, आगे भी ना करना। तो क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं गलत किया सर। अब समझो, अब इसको आज 2006 से 2024 में आ गए राजेश जी, किसी बैलेंस शीट में हमने इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाया? नहीं बनाया। जब ये मैंडेटरी है और आप प्रोविजन नहीं बना रहे, तो क्या आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही थी? नो नो। नहीं दे रही थी। चलिए, जो पिछले कर्म कर लिए थे, भगवान कहते हैं पिछले भूल जो कर्म, आगे तो सुधर जाओ। पिछले के लिए बांके बिहारी लाल जी से माफी मांग लेंगे सर, अब आगे कैसे सुधरना है। हाँ। अब 43 BH में तो वो डिसअलाउंस होना है सर, 43 BH में वो डिसअलाउंस होना है जो बैलेंस शीट डेट पर डिलेड पेमेंट है। लेकिन साल भर राजेश जी जो हमने डिलेड पेमेंट की, उन पे तो ब्याज का प्रोविजन बनना मैंडेटरी हो गया था 43 BH आने के बाद। मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। मैंने एक पार्टी से सारा हाल माल खरीदा सर राजेश जी, मार्च के महीने में मेरी CC बनी और सारी पेमेंट कर दी, लेकिन पूरे साल एक भी पेमेंट नहीं हुई। परचेजिंग आर मेड
ऑल परचेज आर मेड ड्यूरिंग द ईयर, हर महीने परचेज हुई है, लेकिन सारी की सारी पेमेंट कब हुई है? 31 31 मार्च। मार्च को 43 BH तो लगेगा नहीं, लेकिन ब्याज लगेगा। अब तो लगना है। पहले तक तो इसलिए ध्यान नहीं देते थे क्योंकि एक्शन साइड में पड़ा था। अब 43BH आने के बाद इनकम टैक्स वाला क्या मंगाएगा आपका? इनकम टैक्स वाला क्या मंगाएगा सर? लेजर। लेजर मंगाएगा तो फिर सारी लेट पेमेंट नजर आएंगी। वो आपसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहले तक तो मैंने कहा जो कर्म कर दिए वो पाप धुल गए हर आपके, लेकिन आगे सुधर जाओ सर। अब इस साल मैं 2-3 टिप्स दे रहा हूं आपको जो ध्यान देनी है रजेश जी। पहले तो जो भी बैलेंस शीटें बनाएंगे उनमें डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन जरूर करना, जो मैंने पहले कहा है। दूसरा, जहां जहां 43BH का डस्ट अलाउंस डाला है वहां इंटरेस्ट का प्रोविजन 200% करना, और जहां 43BH भी नहीं है हो सके तो ब्याज का प्रोविजन करना शुरू कर देना। क्यों कह रहा हूं रजेश जी ये इसलिए कह रहा हूं सर कि ये जो ब्याज है ये पहले भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं था और अब भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है। फर्क क्या है कि उसको बैंक लोन नहीं देगा। जब बैलेंस शीट में इंटरेस्ट के मोटे मोटे प्रोविजन बनेंगे प्रॉफिट लेस आ जाएगा। यानी ये ब्याज का प्रोविजन हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं कर रहा राजेश जी, ये हमारे सिर्फ बुक प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रहा है, हमारी बैलेंस शीट की ब्यूटी को बुरा इफेक्ट बना कर रहा रहा है, है, बिलो द इफेक्ट कर लाइन रहा है। आएगा जी, बिलो द बिल्कुल लाइन। ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखना क्या है हर CCD रिपोर्ट में? अगर पार्टी ने नहीं बनाया तो लिखो कि नहीं बनाया, लेकिन ये लाइन जरूर लिखनी है हमने अपनी रिपोर्ट में कि हाउएवर आवर टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिमेन्स द सेम, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन दैट। क्योंकि पहले भी हम खर्चा नहीं मांगते थे, इस बार भी नहीं मांगा। ये इसलिए कह रहा हूं रजेश जी क्योंकि हम बैलेंस शीट में एक ही हेड बना लेते हैं इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट एंड चार्जेस। हो सकता है उसमें MSME वाला इंटरेस्ट भी हो, और अगले साल एक अमेंडमेंट और आए जिसमें इनकम टैक्स वाला है कि जो माइक्रो और स्मॉल को दिया वो अलग बताओ, जो बैंक को दिया वो अलग बताओ, जो अनसिक्योर्ड लोन पे दिया वो अलग बताओ। अभी तक ये बाइफरकेशन नहीं कर रहे हम सर। आने वाला जो नया इनकम टैक्स कानून है वो आपको ये कह सकता है राजेश जी कि आप ये इंटरेस्ट भी अलग अलग बताया करो। जैसे भी ये कह दिया कि माइक्रो स्मॉल का अलग बताना है, बाकी का अलग बताना है, तो इनको जो ब्याज दे रहे हो ये भी अलग अलग बताओ। और नए कानून में सर इस बात की पूरी संभावना है। हाँ, दो चीजें और अपडेट करूंगा कि एक तो इनकम टैक्स कानून तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बता दिया कि बदल रहे हैं, हम नया कानून ला रहे हैं। हर उस कानून में इस 43BH के जाने की संभावना खत्म हो गई है, और इसमें है जितनी प्लानिंग आपने निकाली है ना, जो नया कानून आने वाला है, क्योंकि जो विकसित भारत का रास्ता है वो MSME से जा रहा है, सरकार ये कह रही है। हमें और कोई रास्ता हमें नहीं आ रहा, तो हमें उनकी पेमेंट दिलवानी है, चाहे डंडे से मिले चाहे बिना डंडे से मिले। तो ये जितने हमने ट्रेडर बाहर किए, ये किए वो किए, हो सकता है कि अगली बार वो लिख दें, ये वर्ड ही हटा दें। तो ये जी क्या अमेंडमेंट हो सकती है? एनी सम पेबल टू एनी क्रेडिटर, खत्म। माइक्रो स्मॉल वर्ड ही हटा दे वो, तो हम अपने आप सुधर जाएंगे, सारी इंडस्ट्री सुधर जाएगी। अभी तो आप स्कीमें निकाल रहे हो, फिर हर स्कीमें ही खत्म हो जाएंगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए शेयर करना चाह रहा हूं सर, ये MSMED कानून भी मैंने कहा 2006 से जब से आया चेंज ही नहीं हुआ। तो सरकार अब ये प्रपोजल ला रही है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन जो आ रहा है उसमें हम MSMED एक्ट में भी चेंजेस लाएंगे और ड्रास्टिकली चेंज करेंगे। तो इस तरह के कई और प्रोविजंस भी आ सकते हैं सर। हालांकि सर ये जी एक चीज नहीं है, 43BH के बचने का एक रास्ता मैं और शेयर करूंगा। सरकार ने हल दिया है। जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने 43BH पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, उन अभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना चाह रहा हूँ कि बजट में एक प्रावधान आया है। जो प्रावधान ये कह रहा है कि यहां से हम 43BH के लिए एक, यह कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनके वाला सहारा जरूर दिया है सर। वो तिनके वाला सहारा क्या है सर? हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट है सर जिसका नाम है ट्रेड्स, सभी लोगों ने सुनी होगी ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स क्या करता है राजेश जी, इस पे बायर और सेलर दोनों रजिस्टर हो सकते हैं। मैं किसी की पेमेंट 45 दिन में नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से मेरा 43BH का डिसअलाउंस हो जाएगा। ये पोर्टल कह रहा है कि मेरे पास बिल अपलोड कर दो, मैं आपके इनवाइस की डिस्काउंटिंग कर दूंगा, उस पार्टी को तो पूरी पेमेंट कर दूंगा, आपसे ब्याज ले लूंगा।
तो इस 31 मार्च में इंडस्ट्री में ये बहुत सारा कुछ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इनवाइस डिस्काउंट करा करा के अपने 45 दिन की पेमेंट्स को कम किया है। बहुतों ने बैंक से लोन लेके भी किया है। इसके दो फायदे सर। पहली बात तो सुनिए, इस बजट में पहले 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कंपनियों को ट्रेड्स पे रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी था सर। इस बजट में इस 500 करोड़ की सीमा को घटाकर 250 करोड़ कर दिया। ऑप्शनली तो कोई भी हो सकता है, लेकिन 250 करोड़ वालों के लिए तो मैंडेटरी कर दिया। 250 करोड़ किसकी टर्नओवर है मैक्सिमम सर? एमएसएमई की। यानी अगर कहीं आप पेमेंट देने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि 43 BH का डिसअलाउंस हो जाएगा, तो सर आप ट्रेड्स पे रजिस्टर होकर उसका दरवाजा खटखटा लीजिए कि भैया जितने मेरे करेक्टर खड़े हैं कर ले, मैं तेरे को 2-3 महीने में पेमेंट दे दूं। जिसे हम कभी साधारण भाषा में बैंक से अडहोक लिमिट कहते थे सर। तो एक तरह की अडहोक लिमिट देती है इनवाइस डिस्काउंटिंग पर, और इंटरेस्ट इस केस में रजेश जी एज लो एज 7% है सर। और दूसरे मजे की बात, एमएसएमई को ब्याज देते तो ये खर्चा अलाउेबल नहीं था सर। ट्रेड्स को जो ब्याज दोगे वो खर्चा भी अलाउेबल है, वो खर्चा भी अलाउेबल है। अब तीसरा एक सवाल जो अभी हमारे दर्शक पूछेंगे, मैं पहले ही जवाब दे देता हूं, वो ये है राजेश जी कि जो अगर आपने कहा कि एमएसएमई के इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाना है, और मैंने भी कहा कि बनाना चाहिए, आपने भी हाँ मिला दी, जो प्रोविजन बना रहे हैं क्या इस पे 194A लगेगा? टीडीएस कटता था? लगेगा। बिल्कुल लगेगा सर। तो इंटरेस्ट का प्रोविजन करके ले जाना। अब अगली बात जो कहने वाला हूं वो किसी को हजम नहीं होने वाली। जिसको जीएसटी मैंने ब्याज देना है, क्या ये उसकी इनकम है सर? बिल्कुल है इनकम सर उसकी। अब बिजनेस इनकम है तो इनकम है, तो किस साइड की इनकम है सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन? नहीं सोचा सर, जहां तक अभी तक दुनिया नहीं पहुंची मैं वहां तक पहुंच चुका हूं। अब ये उसकी इनकम होगी सर, और बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम ही होगी, क्योंकि ये मेरे को उस पैसे पे ब्याज मिल रहा है जो मैंने बिजनेस में लगाया था सर। जो माल उधार ओके। बेचा था वो मेरी बिजनेस असिस्ट है, मैं पीएल में ही क्रेडिट करूंगा। और इसको लेने के लिए अगर मेरे को कोई एमएसएमई काउंसिल में जाना पड़ा, एमएसएमई समाधान में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, जो खर्चे हैं वो मेरे अलाउेबल एक्सपेंडिचर भी हैं। मेरी ओपिनियन ऐसी है, बट लॉ इज स्टिल नॉट क्लियर, लॉ इज साइलेंट ऑन दैट। मैं तभी कह रहा हूं कि जो नया कानून आ रहा है इस पे काफी सारी संभावनाएं हैं कि इसमें काफी सारी चेंजेस आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो सर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ द हॉल इज ओपन फॉर व्यूअर्स सर। सर और एक इन्हें मैं कहीं सवाल क्वेश्चन ना चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ चैट बॉक्स में लिखें प्लीज, उसमें ना लिखें, नहीं क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, चैट बॉक्स क्वेश्चन में ना आंसर में लिखें। लिखते हैं, ठीक है हाँ सर, मैं ये आपसे पूछ रहा था, अभी आप एक एग्जांपल दे रहे थे जी। कि एवरी मंथ परचेज है और 31 मार्च को पेमेंट कर दी, तो हम्म। इंटरेस्ट का प्रोविजन हमें करना पड़ेगा। हम्म। तो क्या ये 15 और 45 दिन वो पूरे ईयर पे एप्लीकेबल नहीं होगा? वो पूरे पे होगा है ना। 15 और 45 दिन बीच वाली पेमेंट तो होगी ना। 43 हाँ वो, BH क्या कहता है कि जब पेमेंट होगी खर्चा मिल गया। तो जब मैंने 31 अच्छा मार्च को अच्छा, पेमेंट कर दी तो खर्चा तो मिल गया, लेकिन ओके ब्याज। ओके, ब्याह ठीक है सर, ठीक है। ना ना मैं ना सर, अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए, 5 आ गए, तो आप लोगे सर, आप ही पढ़ोगे या मैं पढ़ूं, बताओ। मैं ही पढ़ लेता हूँ, हर ज्यादा बढ़िया हाँ रहेगा सर, प्लीज प्लीज सर। प्लीज सर प्लीज। पहला क्वेश्चन आया है सर हमारे पास, वाई प्रोप्राइटरी फर्म विल बी एक्सक्लूडेड? प्रोप्राइटरी फर्म विल बी एक्सक्लूडेड। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सप्लायर की डेफिनेशन से हर पूछना चाह रहे हैं सेक्शन 2 क्लोज एंड पर। ये लॉ में हर इसलिए प्रोप्राइटरी को एक्सक्लूड किया गया है कि किसी तरह रजिस्टर्ड एंटिटी, क्योंकि प्रोप्राइटर का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं अपनी पर्सनल पेमेंट्स को भी इस पे मांग लूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी मंशा है सरकार की कि सिर्फ हम रजिस्टर्ड एंटिटीज को इसका बेनिफिट दें। दूसरा क्वेश्चन है सर, इफ द इनवाइस कैरीज ऑल द टर्म्स and the invoice has been accepted by the buyer, why will it not be contract? सर कॉन्ट्रैक्ट तो कब होता है? जब रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इनवाइस में कहां टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं सर? 3 कंडीशन नीचे लिखी होती है जनरली इनवाइस में कि ऑल डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू दिस डिसीजन, अगर ब्याज पेमेंट लेट हुई तो इतना ब्याज देंगे, और जो कंडीशन आप लिख रहे हो ऑल आर कंट्रेरी टू द एमएसएमई एक्ट। तो इसलिए मेरी समझ में इनवाइस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता सर। देन हाउ कैन वी हैव टू सेट ऑफ बुक्स? सर डिफरेंट लॉ में डिफरेंट बुक्स है सर।
कहाँ मना किया गया? कंपनी एक्ट मर्केंटाइल कहता है वहां मर्केंटाइल बना लीजिए, इनकम टैक्स कैश कहता है वहां कैश बना लीजिए। इनकम टैक्स में आप क्या करते हैं, हर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट यू आर डूइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। फॉर कंप्यूटिंग द इनकम योर मेथड कैन बी डिफरेंट, for preparing book of account as per the accounting standard your method can be different. You have full right or statutory right to keep two set of books of account. And Mr. Sunil Baveja wants to know that if a turnover of MSME supplier exceeds 50 crore filing in medium category for the financial year 23-24, whether 43BH will be applicable or supplier from such supplier? Very good question. सर देखिए सुनील जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सुनील जी का क्वेश्चन ये है कि 50 करोड़ से ऊपर सेल हो रही है क्या लगेगा? हर मीडियम पे तो लगना नहीं है, लेकिन एक एमएसएमई मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है राजीव जी, जो ये कहता है कि अगर कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस या माइक्रो इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द ईयर क्रॉस कर जाती है हायर कैटेगरी में यानी मीडियम बन जाती है, तो उसे बेनिफिट मिलते रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अपवर्ड रिवीजन अगले 3 साल तक सर। लेकिन यहां पर सुनील जी शायद एक वर्ड बनना भूल गए, लिखा हुआ उन्होंने हर ऑल नॉन टैक्स बेनिफिट। और ये कौन सा बेनिफिट है? ये तो टैक्स का बेनिफिट है, ये नॉन टैक्स तो है नहीं, तो इनको नहीं मिलेगा, ये बाहर तो हो गए तो बाहर हो गए सर। अब कोई और क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं सर। रविंद्र कुमार अग्रवाल जी, जनरली ट्रस्ट सोसाइटी स्कूल आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर उद्यम if they make late payment towards salary and other expenses, whether 43BH and interest provision will apply? सर देखिए, हमने जिसने पेमेंट करनी है वहां पर ये नहीं है, पेमेंट में तो लिखा एन एसएससी एनी सेम पेबल बाय एन एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो एसएससी कैन बी एनीवेयर। तो ट्रस्ट सोसाइटी स्कूल जो रजिस्टर्ड नहीं है उन पे भी लगता है, पेमेंट करने वाले पे तो सब पे लगता है। वो ट्रेडर जो हमने एक्सक्लूड किए सर वो तो अपनी बचाव के लिए कर लिए सर, मैंने पहले भी समझाया, अपना रास्ता निकालने के लिए कर लिए कि कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, तो एक साधारण सा रास्ता हमने ये निकाल लिया कि बड़े वर्ग को बाहर कर दे, और 2021 वाले उसका ऑफिस मेमोरेंडम का बेनिफिट लेके बाहर कर दिया। तो मेरी समझ में यहाँ पर उन्हें रजिस्टर कराना है या नहीं है, उन्हें पेमेंट करनी थी। पर इनका क्वेश्चन सर ये है, इनका क्वेश्चन है क्या सैलरी पे एप्लीकेबल होगा? तो सैलरी वाले तो इम्प्लाई तो बेचारा 43BH में नहीं होता, तो चाहे वो डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल है, लेकिन वो ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगी। लेकिन देखो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ के ये लोग गवर्नमेंट को फिर आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको भी इंक्लूड कर लो। हम लोग ही हद बताते हैं उनको। सर सैलरी वैसे कैश बेसिस पे है। हाँ जी सर, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चले सर। सेक्शन 43 एप्लीकेबल फॉर ट्रेडर, सर इस पे आप बोर्ड कमेंट नहीं करते। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 16? सर इसके लिए सेक्शन 16 ऑफ एमएफएमडी एक्ट पढ़ो, जो है वो कैलकुलेशन बताई मैंने कि 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई रेट होना है, मंथली कंपाउंडेड होना है। हर इसमें रजेश जी एक बात ध्यान देने वाली है कि आरबीआई हर 3 महीने बाद ब्याज की रेट बदलती रहती है। ओके कभी ये 5.5 हो जाता है, कभी 6.5 हो जाता है, कभी 6.25 हो जाता है, इसी में करता है। लेकिन कोरोना के टाइम में ये 4% तक भी चला गया था सर, कम हो गया था उस समय। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर आपके साल के आएंगे, हो सकता है कि चारों में ब्याज की रेट अलग अलग हो, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होनी है। आपको प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, या कोई मार्केट में कैलकुलेटर आ जाएगा जिससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है सर, गुड परचेज स्टैंडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, वेदर सेक्शन अप्लाइज व्हेन वी हैव नॉट क्लेम्ड एक्सपेंसेस। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सतीश जी का, इस पे मैं टच नहीं कर पाया। इनका क्वेश्चन क्या है सर कि कुछ माल स्टॉक में पड़ा है और उधर हमने परचेजेज में डेबिट कर लिया, क्या दिस अलाउंस होगा सर? सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इसकी डिडक्शन ये अगले साल क्लेम करेंगे, या ये कैसे डिस्टिंक्ट करेंगे कि इसी वाले बिल जिसकी पेमेंट लेट हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक में लेकर रहा है? जब आप 3CD में एक तरफ तो ये लिख रहे हो कि क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, क्वांटिटेटिव डिटेल मेंटेन करनी जरूर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है,
ब्याज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और इधर ये कह रहे हो कि ये तो परचेजेस में ही ले कर रहे हैं, नहीं है। आइडली यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि आपने खर्चा नहीं मांगा, बट यू हैव प्रॉपर एविडेंसेस टू प्रूव दैट। सतीश जी, माय ओनली एडवाइस इज हियर कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं अगर, जिससे यह प्रूव कर सकते हो कि ये पेमेंट अभी मैंने क्लेम ही नहीं की, खर्चा मैंने क्लेम ही नहीं किया, ये डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल ही नहीं हुई, तो आप कर सकते हो। Someone is want to ask difference between acceptance and deemed acceptance। सर जी बताते हैं। मैंने ऑब्जेक्शन रेस्ट करने की बात की, आपके पास माल कम भी आया था सर, आपने कोई ऑब्जेक्शन रेस्ट नहीं की, तो 15वें दिन ये डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्शन थी भी, लेकिन फिर भी आपने रेज नहीं की, तो अगर आपने अपने ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम खो दिया तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस है। whether section applies to charitable trust making payment to MSME supplier, whether it is application for charitable, yes, ये अलग चीज है। अशोक जी बहुत अच्छा पूछा आपने अगेन। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या जो सेक्शन डिडक्शन मिलती है सर, वो हमें 43 BH में मिलती है या 28 से लेकर 43 तक सेक्शन में मिलती है? नहीं सर, ट्रस्ट में तो बड़ा सिंपल है सर, कि वहां पर हमारा एक तरफ तो सोर्सेस है रेवेन्यू के, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जब एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो मेरे को एग्जेम्पशन मिल रही है सेक्शन 11 और 12 में, नॉट इन 43 BH। अभी तक लॉ अमेंड नहीं हुआ सर। मैं अगेन कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन ना सोशल मीडिया पर डालो, ना पूछो, क्योंकि अगली बार जैसे आप देखते हो हर ट्रस्ट में एक साल इतनी लंबी चेंजेस आती हैं। पहले TDSP नहीं लगता था ट्रस्ट पे, अब उन्होंने TDSP लगा दिया, और चीजें भी लगा दी हैं। 40A3 भी नहीं लगता था, 40A3 भी लगा दिया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो अगली बार फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा भी सुन रही होंगी हमारे को कहीं, क्योंकि हर सोशल मीडिया ऐसा कहीं वीडियो कोई भी देख लेता है सर। सर मेंबर मेंबर मेरे को व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं सर, कहीं आप ही जाकर तो नहीं बता दोगे? सर मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो आपको बता दिया, मेरा काम आप तक था सर। अब आप क्योंकि वीडियो क्योंकि अपलोड ना करो। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर सर हम लोगों से तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो आपसे ही, कि नहीं लामा मिलेगी, साहब नहीं मिलेगी सजेशन दो। सर। तो खैर क्या? सारे क्वेश्चन ले लिए जो थे, और कोई है तो आप हाँ, पूछ लीजिए। नहीं मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन भी हो गए, और बहुत अच्छा रहा, बहुत वंडरफुली आपने सर, जो कि हमारे मिथ्स थे, मैं मिथ ही कहूंगा कि हमारे मेंबर्स के माइंड में मिथ्स थे, वो आपने 1 बाई 1 सारे क्लियर किए। टाइम भी बहुत कम था, मैं देख रहा हूँ कि अभी तो आपने पहली दूसरी चौथी स्लाइड ही कवर की है, बाकी सब जी तो PPT सर आप भेज देना। फिर भी जी आई सर। रिक्वेस्ट आवर राजीव कोहली जी, प्लीज गिव ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड वोट ऑफ थैंक्स सर। ओवर टू राजीव भाई। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सारा आपने इतना हमारा ज्ञानवर्धन किया, वी रियली अप्रिशिएट इन सच एन अच्छे तरीके सबको, पॉइंट टू पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग विद ऑल द क्लैरिफिकेशन, ऑल द वेरियस सिनेरियोस, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होना है, कैसे करना है, और कैसे हमने अपने आप को ठीक करना, और सारी आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, सारे के सारे आपने क्वेश्चन और आंसर्स दे दिए, प्लस आपने इतने अच्छे नुक्ते बता दिए टू क्वाइट एन एक्सटेंड, जो इसका रिग्रेस इम्पैक्ट है, अगर हम तरीके से उनको फॉलो करेंगे तो काफी इम्पैक्ट उसका कम हो जाएगा। तो उसका बड़े सारे आपने अच्छे टिप्स दे दिए हमें, जो उसके अंदर मोस्ट ग्रेटफुल एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर सजेशंस, इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल एडिशंस फॉर अस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर माय मैं माय एक प्लेजर। मेंबर बात पूछ रहे हैं कि जो आपने सर जो साइटेशन दी है जी सुप्रीम कोर्ट की और चेक वाली, वो आपकी PPT में कवर्ड है, कहीं लिखी हुई है? नहीं सर, ये मेरी बुक में है, ये बुक है मेरी, जो मैंने तो कहा कि सर मैंने तो 43 बैच में। सर मेंबर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो लिख नहीं पाए, वैसे तो वो उसको फिर दोबारा सुन लेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। फिर भी सर थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं आप एक, व्हाट्सएप पे साइटेशन भेज दूंगा। नहीं सर, एक एक PPT के लास्ट में आप एक PPT बढ़ा दें और उसमें साइटेशन डाल दें, तो वो अच्छा रहेगा, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा सर। चलिए फिर मैं कल ऐड करके फिर आपको PPT भेज दूँ। हाँ प्लीज सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरा वेरी मच सर। सौभाग्य है सर। थैंक यू जी।